ਐਮਏ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ प्रिया आवाज आ रही मेरी? प्रिया आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। ठीक है, थैंक यू। कल वाला लेक्चर सुन लिया सीगा परसों वाला? हाँ जी सर। कुछ ਉਹਦੇ ਚ प्रॉब्लम कुछ समझ ना आया ਹੋਵੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? सर आ गया सी। ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆਇਆ? ਪਾਵਰ ਐਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਰਟ ਡਾਹਲ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ? ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। कोई गल नहीं, ज्वाइन करन दो फिर आप शुरू कर दें। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? सर शक्ति ਦਾ ਨਿਯਮੀ ਪੱਕ ਕਰਨਾ, मतलब एक डायमेंशन कर ली सी ना ਆਪਾਂ। फर्स्ट डायमेंशन ऑफ पावर कर ली सी ना ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਆयाम कर लिया ਸੀਗਾ ਨਾ? ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। हाँ जी सर। ठीक है, ਹੁਣ दूसरा आयाम लिखना है। जब चलो करन दो ज्वाइन बच्चों ਨੂੰ फिर कर दें। मैं ਹੁਣ शुरू करदा हां, बच्चे ज्वाइन कर लेंगे फिर अपना नहीं तो टाइम सारा जड़ा ना इदां ही चला जाना या वेस्ट हो जाना। वो लिखो शक्ति, शक्ति दा दूसरा आयाम, शक्ति दा दूसरा आयाम। वो लिखो इस आयाम दा समर्थन, इस आयाम दा समर्थन मुख तौर ते पीटर ब्रशट, मार्टिन ब्रशट अते नव विशिष्ट वर्गीय विचारकां ने कीता है। इस दे नाल नाल स्टीफन ल्यूकस ने भी अपने विचार इस संदर्भ विच प्रकट किए हैं। अपने विचार इस संदर्भ विच प्रकट किए हैं। जिथे जिथे शक्ति का एक आयामी पक्ष निर्णय निर्माण उत्ते जोर दिंदा सी, निर्णय निर्माण उत्ते जोर दिंदा सी, शक्ति का दूसरा आयाम दो चीज़ां उत्ते जोर दिंदा है, दो चीज़ां उत्ते जोर दिंदा है, फैसला निर्माण दे रूप विच शक्ति, फैसला निर्माण दे रूप विच शक्ति ब्रैकेट्स लिखो,
पावर एज डिसीजन मेकिंग, पावर एज डिसीजन मेकिंग ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲਿਖੋ, ਪਾਵਰ ਐਜ਼ ਏਜੰਡਾ ਸੈਟਿੰਗ, ਪਾਵਰ ਐਜ਼ ਏਜੰਡਾ ਸੈਟਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇंट 1 2 3 4 ਪਾ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਮਝ ਗੱਲ? हाँ जी सर। हाँ, पहला पॉइंट ਇਹ ਪੱਖ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਪੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਪੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਚਾਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ ਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂਲਭੂਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਖ ਲਿਆ? ਰਮਨਦੀਪ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी सर, लिख लिया। हाँ जी, चलो अगे चलो। अगला कितने पॉइंट हो गए सर? 5 हो गए। हाँ जी, 6वां पॉइंट लिखो, ਇਹ ਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਕਿਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 6 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਮਤ ਜਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਾਂ ਪਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ परिस्थिति तो भी प्रभावित होता है, परिस्थिति तो भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस विच एजेंडा बना के फैसले किए जाते हैं। इस मत विच फैसला एजेंडा बना के फैसले किए जाते हैं। नैक्सट पॉइंट, ये मत इस गल का भी समर्थन करता है कि एजेंडा सैट करन दा अभ्यास, एजेंडा सैट करन दा अभ्यास निर्णय निर्माता नूं होना चाहिए है, निर्णय निर्माता नूं होना चाहिए है, क्योंकि शक्ति या सत्ता दे नाल नाल समाजिक वातावरण तो भी प्रभावित होती है, समाजिक वातावरण तो भी प्रभावित होती है। ठीक है जी, हुण इहनूं आपां थोड़ा जिहा सम अप करना है। इन्हां नूं इस तरह असीं ये कह सकते हाँ, इस तरह असीं ये कह सकते हाँ कि शक्ति का दो आयामी पक्ष, शक्ति का दो आयामी पक्ष निर्णय लैण जां करन जां एजेंडा सैट करन उत्ते जोर दिंदा है, जां एजेंडा सैट करन उत्ते जोर दिंदा है। इस आयाम की कुछ विचारकों द्वारा आलोचना की गई, कुछ विचारकों द्वारा आलोचना की गई, जिसदे सिट्टे वजों 1970 के दशक विच 1970 के दशक विच स्टीफन ल्यूकस या उस वर्गे कुछ होर राजनीतिक विज्ञानिकां ने शक्ति दे 3 आयामी मत का समर्थन किया, या इसकी व्याख्या या वकालत की, इसकी व्याख्या या वकालत की। हुण लिखो, अगला हैडिंग दो, मेन हैडिंग, शक्ति दे 3 आयामी पक्ष, शक्ति का 3 आयामी पक्ष। इस मत या पक्ष का समर्थन स्टीफन ल्यूकस मार्क्सवादी उग्र विशिष्ट वर्गीय
ਉਗਰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਰਗੀਏ ਅਤੇ ਨਵ ਬਹੁਲਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਵ ਬਹੁਲਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। इस आयाम का केंद्र बिंदु इस आयाम का केंद्र बिंदु विचारधारा है। इस आयाम का केंद्र बिंदु विचारधारा है अते जोड़ तोड़ है। अते जोड़ तोड़ है। इसलिए स्टीफन ल्यूकस ने कहा है, इसलिए स्टीफन ल्यूकस ने कहा है, इन्हों पहले इंग्लिश च लिखो फिर मैं पंजाबी च लिखाना। आइडियोलॉजिकल पावर और मैनिपुलेशन, आइडियोलॉजिकल पावर और मैनिपुलेशन और पावर टू शेप और the power to shape interest, desires and psychology of the persons in favor of desired decisions, in favor of desired decisions and policies ਹੁਣ पंजाबी च लिख लो। शक्ति या विचारात्मक शक्ति या जोड़ तोड़, विचारात्मक शक्ति या जोड़ तोड़ एक एहो जी व्यवस्था है, एक एहो जी व्यवस्था है जिस विच वख-वख व्यक्तियां दे हितां वख-वख व्यक्तियां दे हितां अते मनोस्थिति राही दूसरे व्यक्तियां नू अपने पक्ष विच करना, दूसरे व्यक्तियां नू अपने पक्ष विच करना अते उन्हां कोलों इच्छाकृत या उन्हां कोलों अपनी इच्छा अनुसार निर्णय या नीतियां बनवाना, निर्णय या नीतियां बनवाना, निर्णय या नीतियां बनवाना। ठीक है जी, निर्णय या नीतियां बनवाना। लिख लिया जी, इत्थे तक लिख लिया कि नहीं? हाँ जी सर। हाँ जी। स्टीफन ल्यूकस ने अपने ये सारे विचार अपनी पुस्तक रेडिकल व्यू ऑफ पावर, अपनी पुस्तक रेडिकल व्यू ऑफ पावर विच इसकी व्याख्या की है। उसने अपनी पुस्तक विच आयाम नूं परिभाषित किया है। उसने अपनी पुस्तक विच आयाम नूं परिभाषित किया है। स्टीफन ल्यूकस के अनुसार आयाम तो भाव है एहो जिहा ढंग जां तरीका एहो जिहा ढंग जां तरीका जिस राही
ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ शक्तिशाली वर्ग लिखो, जिस राही शक्तिशाली वर्ग दे दूसरे लोगों नू प्रभावित करते हैं, दूसरे लोगों नू प्रभावित करते हैं, दूसरे लोगों नू प्रभावित करते हैं और अपनियां इच्छावां अनुसार काम करवान लई अते प्रयत्न करते रहंदे हैं। इन्हां ढंगां नाल सत्ता प्राप्त व्यक्ति बिना बल या दबाव दी वरतों करके दूसरे लोगों तो अपनी पसंद शक्तिपारक व्यक्ति बिना बल या दबाव की वरतों करदियां होया दूसरे लोगों तो अपनी पसंद के फैसलियां या विचारां नूं मनवा लेंदे हैं। अच्छा, हुण स्टीवन लिपस कहना की चाहता है, जिहड़ा ए रेडिकल व्यू ऑफ पावर उन्हें जिहड़ी पुस्तक लिखी सी उहदे विच कहना की चाहता है, उहदे विच वो इन्नी जी गल कहना चाहता है कि जो काम विचारधारा कर सकती है वो काम बाकी साधन नहीं कर सकते, क्योंकि जिहड़ी विचारधारा दे विच एबिलिटी है या योग्यता है, एक व्यक्ति अपने विचारां राही दूजे नूं ज़्यादा प्रभावित कर सकता और प्रभावित करके डिजायर्ड जिहड़े आउटकम है वो लै सकता। ठीक है जी, सो मैं अज का लैक्चर इत्थे ही जिहड़ा समाप्त करदा ते कल वास्ते मैं तुहानूं पुछना सी, तुसीं शाम नूं क्लास लगा सकदे हो प्रिया? हाँ जी ਹਾਂਜੀ सर, ਸਰ कोई नहीं। ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ कितने बजे लगा सकते हैं शामी? ਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ। क्योंकि आपां नूं ना तुहाडा सिलेबस इहदा पेपर दा बहुत ज़्यादा है, इस करके 5:30 तो 6:30 लगा सकते हो? हाँ जी सर। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। फिर लगानी है, फिर इदा नहीं कि किसी ने भांजी मारनी विच। ਸਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। चलो फिर तुहाडा कल क्वेश्चन ही खत्म हो जाऊगा, नहीं तो फिर मैं उस तो बाद 3 तुहानूं आ भी 4-5 लिखाने आ भी, जिद्दां वो कल जिहड़ा तुहानूं समझाया सीगा शक्ति प्रभाव के रूप च, ये भी लिखाना है। सर चैप्टर बहुत वड्डा है ते टाइम अपने को तुहानूं पता ही समैस्टर दे विच वैसे ही घट हुंदा, तो आपां 2-2 3-3 पीरियड लावांगे ते तां ही जिहड़ा काम बनेगा, उदां काम नहीं बनेगा। सो मैं अज का लैक्चर इत्थे समाप्त करना है। कल शाम नूं जिहड़ा है तुहाडा 5:30 तो 6:30 बजे मैं तुहानूं लिंक पा दूंगा, लिंक सेम लिंक नाल ज्वाइन कर लियो, रोज़ नवा लिंक पाने की लोड़ नहीं है, क्योंकि मैं तुहानूं मीटिंग शेड्यूल थोड़ा की हुई है, मैं उदां तुहानूं लिंक पाया होया, तो मैं तुहानूं कल लिंक पा के एक बार याद करा दांगा, तो तुसीं जिहड़ा है 5:30 बजे जिहड़ी क्लास जिहड़ी है वो ज्वाइन करो ते नाले जिहड़ा अगला भी समझाने वाला टॉपिक विच समझा के जिहड़ा वो करना। ते कल मैं कोशिश करांगा कि घरों क्लास लैनी, मेरे को घर काफ़ी वड्डा जिहड़ा है ब्लैक बोर्ड लग्या होया, तो मैं कोशिश करांगा कल उहदे उत्ते क्लास जिहड़ी लगा के तुहानूं थोड़ा जिहा बोर्ड के उत्ते भी दस्सां। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।